Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel M for Mathematics. I hope all of you are doing great as we have started this topic inequalities in our previous lecture, and we have discussed the why the relation of this no order relation is undefined in complex number system. So now we know, as I have already told you, that basically Z mod, it is a real number. So as it is a real number, we can compare the absolute values of the two complex number. As we know that whenever we are talking about the complex number, we have z1 is equal to 3 plus 4 iota and z2 is equal to 5 minus iota. So we can obviously find the absolute value of these two. So the absolute value for z1 right there, let me just, okay, so as z1 is equal to 3 plus 4 iota and z2 is equal to 5 minus iota. So now we have to find z1 mod. So z1 mod is equal to, obviously we have z mod is equal to x square plus y square, square of x-axis, coordinate point of x-axis, and the coordinate point of y-axis. So 3 square plus 4 square is equal to this. Then for z2 we have 5 square plus 1 square. As you see that the point for z2 is basically 5 and 1, and the point for this z1 is equal to 3 and 4. So now 3 square is obviously 9 and 4 square is 16. So 16 plus 9 is equal to 25. Now we know that 25 is the square of 5 and this is square root. Now 5 square root is 1 by 2. So by cancellation 5 is our answer for z1 mod. And now for z2 mod we have 5 square is obviously 25 plus 1. This would be 26. Now mode of 25 is 5 and mode of 26 is obviously greater number. So when we solve it, it would be 5.09. So 5.09 is greater than 5. This means that mode of z2 is greater than mode of z1, or we can say that 3 plus 4 5 minus is basically mode of z2 is 5 minus iota mode is greater than 3 plus 4 iota mode. So this is how we say that z2 is closer to origin. So mode of z1 is 5. So we can say that this z1 is closer to origin 0 0, as basically mode is the distance from origin, this point 0 0 0 0. So this is basically origin, and this z1 is basically this mode is basically distance from origin. So 5 and 5.09. So obviously z1 is closer to origin than z2. So this is how we can find out that which one is closer to origin. So now
here we see in geometric interpretation of the, okay, if z1 is then z1 this and this, so and consequently z mod of z1 is less than mod of z2, what I have told already, because z2 is 5.09. A geometric interpretation of Ross inequality is simple. The point 34, now as z1 the mode of z1 is 5, so 0.34 is closer to the 0.00 origin than the 0.5 and 1. So now we are just considering triangle, so yes with vertices at the origin. अब हमारे पास जो है हमने vertices ले ली z1 एंड z1 प्लस z2, हमें पता है ज्योमेट्री से कि जो लेंथ है साइड ऑफ ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग टू द वेक्टर z1 प्लस z2, ये जो है वो कभी भी लॉन्गर नहीं हो सकती इस सम ऑफ लेंथ से। हम बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो z1 और z2 का सम है इंडिविजुअली कंबाइन, ये कभी भी बड़ा नहीं हो सकता इंडिविजुअली z1 के सम से और z2 के सम से। तो यही चीज़ लेंथ, बेसिकली लेंथ की बात हो रही है, तो सिमिलरली लेंथ ऑफ साइड इज़ बेसिकली, सो हमने यही चीज़ इनइक्वालिटी में बता दी कि इनका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से z1 प्लस z2 के सम का, ये हमेशा कम होगा z1 के डिस्टेंस से और z2 के डिस्टेंस के सम से, या मोड बेसिकली यही होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और एब्सोल्यूट वैल्यू इज डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। सो z1 जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस ओरिजिन से, इसका सम किया z2 पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, इससे ये हमेशा बड़ा होगा, इन दोनों पॉइंट्स को सम किया एंड फिर उसका डिस्टेंस किया फ्रॉम ओरिजिन। ओके, सो ये हमारे पास कहलाती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ये जो चीज़ है दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल इनइक्वालिटी, दिस वन। ओके, सो नाउ फ्रॉम द आइडेंटिटी, नाउ अब हम ये हमारे पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, इसको यूज़ करते हुए हम रिवर्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी हम ड्राइव करना चाह रहे हैं, रिवर्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी, और हम इसको देखते कि हम इसको कैसे बेसिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मैं इसको आपको थ्रू ईजियर मेथड एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर था बेसिकली जो रिवर्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी है वो है दिस वन, दिस इज mod of z1 माइनस mod of z2 लेस देन इक्वल टू mod of z1 प्लस z2। ये है रिवर्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अब हम इसी को प्रूव करने वाले हैं कि ये कैसे हमने ऑब्टेन किया। तो हमें जो है बेसिकली पता है, हम वी नो फ्रॉम रिफ्लेक्सिव रिलेशन डैट z1 इज इक्वल टू z1, वो अपने खुद के इक्वल होगा, z1 मोड इज इक्वल टू z1 मोड। हमें इस चीज़ का पता है, हमने क्या किया प्लस और माइनस कर लिया z2 इस तरफ। हमने जब ये किया तो अब हमें एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी की जो प्रॉपर्टी थी वो हमें कहती है, यहाँ पर देखें, अब वो हमें कहती है कि z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल टू z1 प्लस z2, mod of z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल टू mod of z1 प्लस mod of z2। अब हम इस इनइक्वालिटी को यूज़ कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, z1 प्लस z2 mod माइनस mod of z2, दिस इज ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू, इन दोनों को सेपरेट किया इस इनइक्वालिटी के थ्रू, तो z1 प्लस z2, लेट्स से हमने इस ओवरऑल को कह लिया ZA, इसको कह लिया ZB। अब हमने इसको 1 2 की जगह रिप्रेजेंट कर लिया ZA से और ZB से, हमने कह लिया ZA एंड ZB। अब देखें दिस ZA प्लस मोड ऑफ ZB लेस देन इक्वल टू, तो ये ZA क्या था Z1 प्लस Z2 एंड ये था माइनस Z2। अच्छा, अब यू नो वेरी वेल कि हमारे पास ये जो माइनस
Z2 है, ये मोड में हमारे पास कोई भी वैल्यू हो वो हमारे पास हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव ही रहती है, बिकॉज मोड इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन और एब्सोल्यूट वैल्यू। क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे पास x लेस देन ज़ीरो है, x यानी माइनस एक्स है, बट वो किसके इक्वल होगा, मोड ऑफ x के ही इक्वल होगा। तो यही चीज़ हमने बेसिकली यहाँ पर यूज़ किया है, यही रिज़ल्ट यूज़ किया है, तभी माइनस Z2 जो है वो Z2 के मोड ऑफ Z2 के इक्वल आती है। हम यहाँ लिख लेते हैं, सिंस माइनस Z2 इज इक्वल टू मोड ऑफ माइनस Z2 इज इक्वल टू मोड ऑफ Z2। सो अब यहाँ पर हमारे पास Z1, ये हमने इस इनइक्वालिटी की जगह डायरेक्टली ये वाली लिख ली। अब यहाँ पर है प्लस, अब इसे हम अगर दूसरी तरफ इनइक्वालिटी की दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, बेसिकली मैंने आपको पहले भी यही चीज़ बताई कि हम शिफ्ट नहीं कर रहे होते, बल्कि हम दोनों तरफ, अब यहाँ पर भी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पर ये ऐड हो रही है तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा कैंसिलेशन ला से, और यहाँ आ जाएगी, दोनों तरफ हमने सब्ट्रैक्शन की, यहाँ ये कैंसिल हो गई। तो यहाँ हम एक पॉइंट लिख लेते हैं, सब्ट्रैक्टिंग Z2 बेसिकली मोड ऑफ Z2 ऑन बोथ साइड। अब दोनों तरफ अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया इसको, दोनों साइड ऑफ इनइक्वालिटी, तो ये इससे कैंसिल हो गई और हमारे पास क्या बचा, Z1 माइनस मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2 लेस देन इक्वल टू Z1 प्लस Z2। इसे हमने कह दिया इक्वेशन 1। अब बेसिकली जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि हमारे पास यहाँ तक तो हमने इसको कर लिया, ये माइनस Z2 था, देन ये माइनस Z2, हमने कहा कि Z2 इज इक्वल टू माइनस Z2, क्योंकि सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर इज इट्स पॉजिटिव काउंटर पार्ट, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द एग्जैक्ट सेम साइज और मैग्नीट्यूड, तो वही हम कहते हैं नेगेटिव पार्ट उसके एग्जैक्ट सेम साइज ऑफ पॉजिटिव पार्ट के इक्वल है। तो अब हमने क्या किया जी, हमने यहाँ पे Z1, ये यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, देन ये वही कैंसिलेशन से, अब हमें पता है कि Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1, तो हमने यहाँ पे इसी यहाँ पर ये जो Z1 प्लस Z2 था इसकी जगह हमने क्या किया, Z2 प्लस Z1 किया, और वही जो इनइक्वालिटी में हमारे पास आ रहा था यहाँ पर Z1, इसकी जगह हमने लिखा Z2, यस। सो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ Z1 माइनस Z2 इनइक्वालिटी हमारे पास बन रही थी, ये देखें Z1 ये था Z1 प्लस Z2 मोड ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 माइनस Z2, हमने यहाँ Z2 माइनस Z1 किया, Z2 माइनस Z1, अब हमने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया Z1 माइनस Z2। और यही चीज़ हम इस तरह डिटेल में और इजियर मेथड में डिस्कस कर रहे हैं कि हमने वही सेम क्या किया, दोबारा इसी Z2 हमने पहले यहाँ पर Z1 लिया था, यहाँ पे हमने Z1 लिया था और Z2 जो है वो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया था। यहाँ हमने क्या करना है, Z2 लेना है और ऐड एंड सब्ट्रैक्ट क्या कर देना है, Z1 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। हमने Z2 लिया और हमने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट क्या कर दिया, Z1। अब यहाँ पर जब हमने Z1 को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया तो ऑब्वियसली दोबारा हमने वही इनइक्वालिटी यूज़ की, हमने कहा कि दिस होल थिंग इज़ ZA and this thing is basically ZB. This minus Z1 is basically ZB and in between is plus. So now हमने दोबारा यही इनइक्वालिटी की, हमने कहा Z1 प्लस Z2 माइनस Z1 लेस देन इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस माइनस Z1 सेम ZA प्लस ZB। यहाँ पर जो ये चीज़ थी वो क्या थी, ZA थी एंड ये चीज़ थी ZB। तो हमने दोबारा इसको जब सेपरेट किया, अब हम वही चीज़ दोबारा अप्लाई करते हैं कि माइनस Z1 सिंस माइनस Z1 मोड इज इक्वल टू
Z1 मोड। ये हमने कह दिया कि ये -Z1 मोड जो है वो Z1 मोड के इक्वल आता है इसी रूल के तहत, ये जो यहाँ था। तो अब हमने इसको लिख दिया, यहाँ हो गया +Z1। अगेन हमने क्या किया, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट Z1 ऑन बोथ साइड, सॉरी सब्ट्रैक्ट Z1 ऑन बोथ साइड। यहाँ पे प्लस था तो अगर यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ तो सिर्फ हमें Z1 + Z2 ही चाहिए ना, हमें जो ये इनइक्वालिटी है ये बनानी है। तो हमें यहाँ Z1 Z2 चाहिए था, यानी हमें Z1 ख़त्म करना है। तो हमने एक -Z1 इधर कर लिया और फिर एक -Z1 इधर भी करना पड़ेगा, तो हमने यही मेथड किया। तो हमने जब किया ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ Z2 - Z1 <= Z1 + Z2। तो ये हमारे पास अब अगेन वी वांट टू मैच दिस इक्वेशन इनइक्वालिटी विद दिस वन। यहाँ Z1 Z2 है, यहाँ Z1 - Z2 है, लेकिन यहाँ Z2 - Z1 है, तो इसको भी हम इसी तरह Z1 को पहले लिखेंगे। इस वजह से हमने माइनस कॉमन लिया, यहाँ आ गया Z1, यहाँ आ गया -Z2। अब यही चीज़ हमने यहाँ पर बिल्कुल डायरेक्ट स्टेप में कर दी थी। हमने Z1 को जो है ना वो Z2 से डायरेक्टली रिप्लेस कर दिया था। तो हमारे पास क्या आ गया था, यहाँ पर Z2 - Z1 और माइनस कॉमन लिया तो Z1 - Z2 आ गया था। और उसके बाद हमने इसको अब हम देखेंगे। अब देखें, हमारे पास अगर x > 5 है, x > -5 है, तो x > mod of 5 होगा। अब यहाँ देखें, हमारे पास हम कहते हैं कि ये जो Z1 + Z2 mod of Z1 + Z2 है, ये x है। अब यहाँ पर देखें, mod of Z1 + Z2 क्या है, ग्रेटर देन है इस इनइक्वालिटी से, इस इनइक्वालिटी के माइनस से, इस तरह। फिर यही Z1 + Z2 ये जो x है, ये क्या है, ग्रेटर देन है इस इनइक्वालिटी के प्लस से। देखें यहाँ पर, अब ये जो इनइक्वालिटी है हमने इसको कह दिया था x है। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ, इसको हम कह देते हैं, चलें ये जो हम है हमारे पास Z1 mod - Z2 mod, हम इसको कह देते हैं y। तो अब हमने कहा कि ये माइनस ऑफ वाई, x > माइनस ऑफ वाई। यहाँ पर क्या है, x > वाई, ये y था ना, x > वाई। तो देखिए x > 5, x -5, तो एक दफ़ा पॉजिटिव का, एक दफ़ा नेगेटिव का। इसका क्या मतलब हुआ, x > mod of 5, और यहाँ ग्रेटर देन था, यहाँ > है, इसका मतलब है x > mod of y, यही होगा इसका। यानी कि x greater than yes, this is sign of x > I am just confusing this. Okay, x > mod of y। सो यहाँ हमने वही चीज़ की, y क्या था हमारे पास, y था हमारे पास Z1 - Z2। अब इस y Z1 - Z2 का हमने ओवरऑल का मोड ले लिया, तो हमारे पास यही Z1 y मोड ऑफ y था ना, मोड ऑफ, ये हो गया मोड ऑफ y, तो मोड ऑफ, तो ये देखें ये इसके इक्वल नहीं है Z1 - Z2। सो यहाँ पर ये जो है ये इसके इक्वल हो गया। अब हमने ये लिखा था कि x ग्रेटर देन, तो यहाँ पे x तो Z1 + Z2 था, तो ये ग्रेटर देन हो गया। सो इस तरह हमने ये जो है प्रूफ कर दी कि Z1 + Z2 ये ऊपर जो है ये क्या है, ये mod of Z1 माइनस mod of Z2, ये इसके इक्वल आ गया। अब हमारे पास ये जो है इनइक्वालिटी, ये वाली इनइक्वालिटी जो है बेसिकली, इसके अलावा हमने ये एक इनइक्वालिटी लिख ली Z1 - Z2 mod लेस देन मोड ऑफ, अब इसमें हमने कहा Z1 - Z2 <= मोड ऑफ Z1 + Z2, और हमने ग्रेटर देन इक्वल टू वाली भी एक इनइक्वालिटी बना ली जस्ट फॉर आवर सपोजिशन। फिर हमने चेक किया कि ये जो इनइक्वालिटी हम ऑलरेडी रिवर्स इनइक्वालिटी कर चुके हैं,
ये तो सब पे जो है ना वो जनरलाइज है, सबके लिए ये ट्रू ही आएगी, आप कोई भी पॉइंट पुट करके देख लें। बट हमने इसको चेक करना है कि ये जो दोनों हैं ये ट्रू हैं या नहीं। हमने पहली को देखा Z1 माइनस Z2, इक्वलिटी को देखा कि इक्वल करके देखें तो क्या होता है, Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2। तो हमने वैल्यू पुट की 1 प्लस आयोटा, पहला पॉइंट था Z1 एंड Z2 था 2 आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा, देन Z1 प्लस Z2 1 प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा। इसको हमने सॉल्व किया, ये आ गया जी 1 2 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा, तो ये हो गया 1 3 आयोटा, 1 प्लस 3 आयोटा। अब मोड ले लिया, 1 प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1 प्लस 3 ऑब्वियसली 10 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो यहाँ देखें ये आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 1.41 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 10 आता है 3.16। तो ये इक्वल तो नहीं है इसके, बट ये क्या है, लेस देन है इसके। इसका मतलब है कि ये लेस देन इक्वल टू वाली जो है कंडीशन वो ट्रू हो गई। हम ये कह सकते हैं कि ये लेस देन आता है, कोई और पॉइंट पुट करेंगे तो ये इसके इक्वल भी आ जाएगा। सो यहाँ पर ये ट्रू होगी। बट हम एक और पॉइंट ले लेते हैं, चले हम लेते हैं Z1 1 प्लस आयोटा, Z2 माइनस 1 माइनस आयोटा, सॉरी फॉर दिस। सो हमने यही लिया और हमने वही इनइक्वालिटी 3 यहाँ लिखी। अब हमने वही किया, 1 प्लस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा, बेसिकली यहाँ पर 1 प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1 प्लस आयोटा लेस देन इक्वल टू Z1 प्लस Z2 1 प्लस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा। ये तो आ गया हमारे पास 1 प्लस 1 2 एंड आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा, एंड यहाँ आ गया हमारे पास 0। मोड ऑफ 0 जो है वो हमारे पास 0 ही होता है। तो 2 माइनस 2 आयोटा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8। कभी भी जो है स्क्वायर रूट ऑफ 8 0 से, क्योंकि ये ऑब्वियसली पॉजिटिव है तो ये कभी भी 0 से लेस देन नहीं हो सकता। सो यहाँ पर वही इनइक्वालिटी जो 3 थी वो फॉल्स हो गई। तो इस वजह से हमारे पास बेसिकली जो हमने यहाँ पे इसी तरह अगर हम 4 के लिए भी कुछ पॉइंट्स लेंगे उसको पुट करेंगे तो वो भी इनइक्वालिटी जो है वो फॉल्स हो जाएगी। तो हमने क्या कह दिया, हमने कहा कि हमारे पास ये जो इनइक्वालिटी थी ये सारी वैल्यूज़ के लिए ट्रू नहीं है। सिमिलरली ये इनइक्वालिटी सब वैल्यूज़ के लिए Z1 Z2 की किसी भी वैल्यू कोई भी ले लें, एनी ऑफ द वैल्यूज़ के लिए फॉल्स हो जाती है। तो हमने कहा 3 and 4 are true for some values but not true in general. So this means Z1 minus Z2 cannot be universally replaced by mod of Z1 mod of Z1 minus mod of Z2। तो ये यूनिवर्सली ये जो इनइक्वालिटी है ये इससे रिप्लेस नहीं की जा सकती, ये Z1 माइनस Z2। हमें 2 दफ़ा इसमें अलग से मोड, इसका अलग से मोड, देन ओवरऑल का अलग से मोड लेना पड़ेगा। तो ये जो है ये ट्रू होती है, जनरलाइज है सबके लिए, ठीक है। तो हमने कह दिया Z1, सो Z1 मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2 लेस देन इक्वल टू Z1 प्लस Z2। ये तो रिवर्स, और ये जो Z1 प्लस Z2 यहाँ तक तो हमारे पास रिवर्स इनइक्वालिटी थी। अब ये जो है वो क्या थी हमारे पास, ये ट्रायंगल, वो हमारे पास थी रिवर्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ये थी ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अगर आप इसको देखें यहाँ, ये Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2, मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2। तो ये वही हमने लिख दी यहाँ पर, हमने रिवर्स और ट्रायंगुलर, रिवर्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी एंड ट्रायंगल इनइक्वालिटी उनको मिला के लिख दी, तो हमारे पास जो है ये प्रूफ आ गया। सो इफ़ यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चन आप वो पूछ सकते हैं, एंड बेस्ट ऑफ लक, ट्राई टू सॉल्व इट, एंड इसको जो है ये प्रूफ आप प्रॉपरली कर लें, बिकॉज दिस इज़ द डिटेल्ड प्रूफ, और ये आपके लिए मोर बेटर टू कॉपी दिस एज इट इज़ मोर ईजी टू रिमेंबर दिस प्रूफ। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।